वर्ष 1794 में ही यह शहर ग्वालियर रियासत की एक ब्रिटिश छावनी बन गया। यह एक योजनाबद्ध शहर था जिसे अंग्रेजों ने एक सैन्य मुख्यालय के रूप में बनाया था। नीमच छावनी ने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एवं यह संपूर्ण मध्य भारत में अशांति एवं विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र था। नीमच कई सारे भारतीय सेना रेजिमेंटों का भी स्टेशन रहा है। नीमच के इसी सैन्य परंपरा में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ा वर्ष 1939 में, जब ब्रिटिश क्राउन प्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु गठन किया गया क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल का। और आज 86 वर्षों के बाद यह बल दुनिया के सबसे वृहद एवं विशाल अर्धसैनिक बल के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपने स्थापना काल से ही देश के समक्ष आने वाली प्रत्येक चुनौती का डटकर मुकाबला किया है तथा भारत को आंतरिक रूप से अखंड एवं सुरक्षित बनाया है। चाहे सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हो अथवा लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के दौरान अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं एवं निष्पक्ष भाव से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की परंपरा को अबाध्य गति से जारी रखना हो, हर बार देश ने सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को ही यह जिम्मेदारी सौंपी है। आज की इस भव्य परेड को मधुर और कर्णप्रिय बनाने का जिम्मा है ब्रास बैंड और पाइप बैंड का। ब्रास बैंड का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक बैंड सुनील चंद्र और पाइप बैंड को नेतृत्व प्रदान करने का जिम्मा है उप निरीक्षक बैंड AK मुखर्जी के पास। सारे जहां से अच्छा देश के हम हैं रक्षक और कदम कदम बढ़ाए जा की धुनों पर इस परेड की शान में चार चांद लगाते हुए CRPF बैंड टीम। The CRPF is presently deployed in all high-intensity conflict theaters of the nation, fighting cross-border jihad terrorism in Jammu and Kashmir, countering multiple ethnocentric insurgencies in the northeast, tackling left-wing extremism in the hinterland, and the balance is engaged in maintaining multifaceted public order and securing VVIP and vital installations. Our role in general elections during the past decades deserves special attention. The Election Commission of India relies on CRPF to ensure free and fair elections, be it general or assembly elections across the country. Our role in facilitating elections, especially in Jammu and Kashmir, left-wing extremism affected states and Northeast, is not only significant but also crucial. During the general elections and assembly elections, CRPF plays a major role as the lead coordinator in the security arrangements. Today's
First contingent is being commanded by Miss Megha Nair. Hailing from Kerala, Miss Megha Nair joined CRPF as directly appointed gazetted officer in 52nd batch. She completed her graduation in Bachelor of Technology in Par. After basic training, she completed Cobra PI and served in sensitive areas of LWE theatres. Due to her dedication and commitment towards duties, she has been awarded Silver DigiDisc in Administration and Silver DigiDisc in Sports and Training. In 2024, she led the CRPF Mahila contingent in Republic Day Parade, and the contingent was adjudged as the best marching contingent. यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एकमात्र ऐसा पुलिस बल है जिसमें 2 राष्ट्रपति निशान प्राप्त है। प्रथम निशान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिया गया एवं द्वितीय निशान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशिष्ट शाखा आरएएफ को वर्ष 2003 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा दिया गया। हमारे सम्मान के प्रतीक यही दोनों निशान आज परेड मैदान के मध्य में। The CRPF is a highly decorated force. In 86 years since its inception, the CRPF has been decorated with 2,708 medals, which includes 1 George Cross, 3 King's Police Medal for Gallantry, 1 Ashok Chakra, 1 Padma Shri, 1 Veer Chakra, 14 Kirti Chakras, 48 Shaurya Chakras, 49 President's Police and Fire Safety Medal for Gallantry, 203 President's Police Medal for Gallantry, 1 Yuddha Seva Medal, 5 Sena Medals, 4 Vishishta Seva Medals, 2,054 Police Medals for Gallantry, 136 Medals for Gallantry, 5 IPMGs, 7 Jeevan Raksha Padaks, 114 Prime Minister Police Medal for Life Saving, 10 Kendriya Grih Mantri Dakshata Padaks, and 51 Union Home Minister's Special Operation Medal. मध्य सेक्टर की कमान संभाल रहे हैं श्री गोकुल कुमार एस, सहायक कमांडेंट 230 वाहिनी। आप 2020 में 52वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। आप तमिलनाडु के तिरुपुर के निवासी हैं तथा अपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में फरवरी 2023 के हुए नक्सलियों के विरुद्ध मुठभेड़ में प्रदर्शित बहादुरी के लिए आपको परिचालनिक डीजी डिस्क तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। आप सभी को बता दें कि कुछ ही क्षणों में हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, शौर्य स्थल पर वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पहुंचेंगे। Third contingent is of Uttarakhand sector, commanded by Shri Vivek Kumar Gupta. Born and brought up in Bharatpur, Rajasthan, Shri Vivek Kumar Gupta, Assistant Commandant, was enlisted as gazetted officer in 2023 DIGO 18th batch. Currently deployed in 21st Battalion CRPF, he completed his graduation in BCA from Rajasthan University and post-graduation in MBA from Rajasthan Technical University. After joining CRPF, he has served in various battalions like 111 Battalion Dantewada, 203 Cobra and 246 Battalion. For his meritorious services,
he has been awarded Internal Security Medal and IG's commendation letter. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाकुंभ की भव्यता के बीच सीआरपीएफ श्रद्धालु की सुरक्षा और सेवा सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहे। इस भव्य धार्मिक समागम में उनके समर्पण और देशभक्ति ने एक उल्लेखनीय मिसाल कायम की है। सीआरपीएफ के जवान सभी घाटों, मेला प्रांगणों और प्रमुख मार्गों पर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था बनाते हुए आधुनिक तकनीक और सतर्क निगरानी के साथ किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तत्पर रहे। भारी भीड़ के बीच सीआरपीएफ के जवान सक्रिय रूप से विनम्र व्यवहार रखते हुए श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहे थे। साथ ही साथ सीआरपीएफ की आपदा प्रबंधन टीम किसी भी संकट का तुरंत जवाब देने हेतु हाई अलर्ट पर रही। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान खोए हुए बच्चों और बुजुर्गों को उनके परिवार से मिलाने में भी इस बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण की मिसाल कायम करता हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्रुत कार्यबल सेक्टर का नेतृत्व कर रहे हैं श्री संकेत सुनील सकलकले, सहायक कमांडेंट 99 RAF। आप 2017 में 50वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले श्री संकेत ने गणित में MSc किया है। आपने छत्तीसगढ़ में बीजापुर और सुकमा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी अति महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। आपको आपकी सराहनीय सेवा के लिए एक राष्ट्रपति आंतरिक सुरक्षा पदक, केंद्रीय गृह मंत्री आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक एवं 3 महानिदेशक डिस्क एवं प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया है। आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाकर देश को विकास दिलाते हैं। हाँ, हम सीआरपीएफ हैं। माओवाद से लड़कर संविधान के अंत्योदय के सपने को सच बनाते हैं। जी हाँ, हम सीआरपीएफ हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सुरक्षित चुनाव करवाते हैं। हाँ, हम सीआरपीएफ हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी शांति बहाल करवाते हैं। जी हाँ, हम सीआरपीएफ हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं के समय देश के संकट मोचक बन जाते हैं। हाँ, हम सीआरपीएफ हैं। अशांति एवं सांप्रदायिक तनाव के माहौल में दंगा नियंत्रण कर पुनः शांति स्थापित करवाते हैं। जी हाँ, हम सीआरपीएफ हैं। हम भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे सशक्त स्तंभ हैं। हम सीआरपीएफ हैं। The CRPF has transformed itself into the first responder and lead force for all counter-insurgency and counter-terrorism operations and contingencies. We are regularly called when a state's law enforcement measures prove inadequate. The critical pillar in a counter-insurgency scenario has always been the establishment of security and stability, and the CRPF is the core element in that pillar.
This generally means our immediate deployment as the lead force, supplemented by other forces. Our endeavor is to create a counter-insurgency grid that covers the entire affected area and with that mounts pressure on the adversaries. In today's parade, Cobra sector is being led by Sri Karthikeyan S, Assistant Commandant, 204 Cobra, Karanpur. Born in Ariyalu district of Tamil Nadu, he has completed his graduation in Bachelor of Engineering from Anna University, Chennai. He is a directly appointed gazetted officer of 47th batch, and for his extraordinary services in CRPF, he has been awarded 3 DJ discs and commendation letters. अब से कुछ ही क्षणों में हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय शौर्य स्थल पर वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पहुंचेंगे। Beyond barriers and boundaries of region, religion, race, and class, charged with the memories of those who have laid down their lives for the nation. Today, it's yet another occasion when CRPF celebrates its diversity and showcases its strength and versatility. We shall witness magnificent parade that celebrates Nari Shakti, as well as the dynamic and diversified role that CRPF plays in maintaining internal security of the country. आज की परेड का छठा दस्ता राजस्थान सेक्टर का श्री विक्रम कुमार मीना सहायक कमांडेंट की कमान में। आप 44वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। मूलतः राजस्थान के निवासी, आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। आपने झारखंड और जम्मू कश्मीर के अत्यंत संवेदनशील इलाकों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। आपकी बहादुरी और सराहनीय कार्यों के लिए आपको 4 डीजी डिस्क एवं प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया है। परेड में खड़े इन सभी जवानों को ये कुछ पंक्तियां चरितार्थ करती हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया सदैव विघ्नों में रहकर काम किया, जिसने न कभी आराम किया सदैव विघ्नों में रहकर काम किया। The 7th contingent of today's parade is of the southern sector, commanded by Shri Vivek Ranjan. Born in Muzaffarpur, Bihar, after completing his BTech in electrical engineering from NIT Surathkal, he joined the CRPF in 2023 as directly appointed gazetted officer of the 53rd batch.
He has completed Greyhound Commando course and anti-Naxal training course. He is currently posted in 141 Battalion, Bhadrachalam, Tamil Nadu. हम आप सभी को हर्ष के साथ अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय सीआरपीएफ नीमच के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। और अब आप इस प्रांगण में लगे एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शौर्य स्तर पर वीर बलिदानियों को पुष्प द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इन बलिदानियों को अर्पित पुष्प चक्र हमें याद दिलाते हैं निरंतर गतिमान जीवन चक्र की, नश्वर देह और अनश्वर आत्मा की, जीवन एवं मरण के अकाट्य सत्य की। हम आपको अवगत करा दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2264 साथियों ने अपनी कर्तव्य परायणता की राह पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे गला सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। और अब शौर्य स्थल विशिष्ट गार्ड द्वारा शोक शस्त्र कर उन अमर वीरों को नमन किया जा रहा है। साथ ही उनके बलिदान के सम्मान में ध्वज को हाफ मास्ट कर नीचे उतारा जा रहा है। सहृदय नमन उन वीरों को जो छोड़ धरा को अमर हुए, जिस माँ की गोद में पले बढ़े, मिल उसकी रज में प्रवर हुए। है धन्य हुई वह कोख मात्र की, जिसने शूरों को जन्म दिया, जो लड़े वतन की रक्षा में, जीवन को भी कुर्बान किया। है लाल हुई यह धरती भी, जिनके लहू के कतरों से शत बार नमन साहस को उनके, जो टूटा नहीं था खतरों से। मातृभूमि की रक्षा कर जो उसके ऋण से मुक्त हुए, देकर बलि अपने प्राणों की, धरती की गोद में सुप्त हुए। सदियां भी याद रखेंगी उनके देश प्रेम बलिदान को, अतुलनीय साहस, पौरुष और आत्म अभिमान को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और शौर्य स्थल पर उपस्थित सभी कुछ क्षणों का मौन रख अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अब विशिष्ट गार्ड द्वारा सलामी शस्त्र कर पुनः ध्वज को लहराया जा रहा है। नमन उन्हें जो सर कटे स्वतंत्रता की रक्तिम राहों में, नमन उन परिवारों को जहां लाल न लौटे बाहों में, नमन हर बलिदानी को जिसने तन मन धन वारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये स्मारक नहीं होते मात्र टुकड़े पत्थर के, इनमें गढ़े हैं उन अमर शूरवीरों के नाम, जो इतिहास के पन्नों में, जगत के रंगमंच पर कभी हम जैसे जीवंत इंसान थे, और जिन्होंने अपने बलिदान से न केवल अपने वतन को ही जिंदगी दी, बल्कि इस पत्थर के स्मारक को भी हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसके आगे हम शीश नवाते हैं, क्योंकि यही पहचान है हमारी अस्मिता की, गौरव की,
और बलिदान की। शौर्य स्थल पर उपस्थित बैंड इन क्षणों को और पावन बना रहा है। इस अवसर पर बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हुए। है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। मुख्य अतिथि महोदय का शौर्य स्थल से प्रस्थान। We are now eagerly waiting for the arrival of Honorable Chief Guest, Shri Amit Shah, Union Minister of Home and Cooperation, Government of India. इतिहास के पन्ने हमें याद दिलाते हैं 86 वर्ष पूर्व 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का उदय नीमच मध्य प्रदेश में हुआ और साथ ही उदय हुआ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के ध्येय हेवेंस लाइट आवर गाइड का, जिसका उद्देश्य तत्कालीन राजसी रियासतों में शांति व्यवस्था कायम रखना था। देश स्वतंत्र हुआ और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की देश हित में भावी भूमिका को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया। आज की परेड में मंच की बाईं ओर एडीसी की भूमिका का मजबूती से निर्वहन करेंगे उप निरीक्षक विशाल कुमार, 110वीं वाहिनी, पुलवामा, कश्मीर, तथा मंच के दाहिने ओर एडीसी की भूमिका में रहेंगे उप निरीक्षक संतोष पटेल, 7वीं वाहिनी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का आगमन हमारे मध्य होगा। तुम प्रबल प्रबुद्ध हो, समर सिंह क्रुद्ध हो, प्रयंकार रुद्र हो, ज्ञान धीर शुद्ध हो, देश धर्म आन बान, मातृभूमि के विहान। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। इसी संकल्प, इसी आह्वान के साथ आज के ये सभी जवान माननीय मुख्य अतिथि महोदय की प्रतीक्षा में। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। और इसी के साथ आगमन हुआ हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का। फैनफेयर संकेत है मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए। बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय के पश्चात महानिदेशक महोदय की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया गया। यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। और अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। राजपत्रित अधिकारी, 31 अधीनस्थ अधिकारी, 780 अन्य सैनिक, 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं परेड के निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। और अब मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक महोदय एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का। देश के प्रतिष्ठित राजनेता, वैचारिक दृढ़ता, राजनीतिक दूरदर्शिता, अद्भुत नेतृत्व क्षमता संपन्न, विलक्षण तथा कुशल रणनीतिकार,
प्रखर वक्ता, ओजस्वी राजनेता, आधुनिक राजनीतिक गगन के चमकते सितारे, देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ, भारत माता के सुपुत्र श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को श्रीमती कुसुमबेन और श्री अनिल चंद्र शाह के एक गुजराती परिवार में मुंबई में हुआ। श्री अमित शाह जी सच्चे अर्थों में उदीयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जमीनी स्तर से कार्य करते हुए भारत के दैदीप्यमान राजनेता के तौर पर उभरे हैं। महोदय, आपको कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है। गृह मंत्री रहते हुए धारा 370 हटाने जैसे निर्भीक एवं ऐतिहासिक फैसले हो या भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं साक्ष्य विधेयक को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल कर भारतीय न्याय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना हो, इनको दृढ़तापूर्वक लागू करने का निर्णय भी आपकी दूरदर्शिता को यथार्थ में परिलक्षित करता है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री अमित शाह जी का क्रिकेट खेल में विशेष अनुराग है। आप एक ऐसे उत्सुक पाठक हैं जिनकी इतिहास और साहित्य में गहरी अभिरुचि है। The inspection vehicle is heading towards smartly dressed contingents. महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उत्तरोत्तर कार्यरत है। अब सरकार की रणनीति के तहत अगले वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के संकल्प को साकार करने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल उन्मूलन अभियानों में तेजी आई है तथा हमारे बल के बहादुर जवान नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनका खात्मा कर रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्र विरोधी ताकतों को पूर्ण रूपेण समाप्ति की ओर ले जाना हो या देश विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित दंगों का सफलतापूर्वक निपटारा हो, यह सब आपके सक्षम एवं दृढ़ नेतृत्व का ही परिणाम है। इसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा
अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गुरुग्राम स्थित ग्रुप केंद्र में किया गया था, जिससे प्रेरित होकर बल के जवानों ने वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोदय, गृह मंत्री के रूप में केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की सभी महत्वपूर्ण मांगों की तरफ आपका सदैव विशेष ध्यान रहता है। बल एवं जवानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु आपका शुभाशीष हमें अनवरत रूप से मिलता रहता है, जो कि आपके बल के प्रति विशेष अनुराग का द्योतक है। परेड दस्तों के निरीक्षण के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय पुनः सलामी मंच की ओर। दर्शकों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त की गई और अब परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। इनके निश्चय को स्वर्गीय वाजपेयी जी की ये पंक्तियां चरितार्थ करती है कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। कंपनियों की कॉलम में मंच से गुजरेगी। हौसला 20 कदम। नंबर 1 कंपनी आगे। परेड जाने चलेगी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, चौड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी संकल्प के साथ परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु परेड के शीर्ष की ओर परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि परेड के दौरान जब निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, जोश से चौड़े सीने, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के दस्ते आगे बढ़ते हुए डंके की चोट को अपने कदमों तले दबाते ये सभी जवान, जिनका हर कदम राष्ट्र रक्षा के संकल्प की गवाही दे रहा है। देश प्रेम, साहस व राष्ट्रहित में सर्वस्व न्यौछावर करने में सदैव अग्रणी ये शूरवीर कदम से कदम एवं कंधे से कंधा मिलाकर असीम उत्साह व जोश के साथ अपनी शानदार ड्रिल कला की छोटी सी झलक प्रस्तुत करते हुए अनुशासन, संयम तथा एकाग्रता की एक अनूठी झलक दिखाती यह 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड। प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वल है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्मी से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। To the tune of Sare Jahan Se Acha, the parade is about to cross the saluting base. सलामी मंच की ओर
मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए आज की परेड के परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री सिंटू चरण सिंह। सबसे पहले उत्तरी सेक्टर का दस्ता, महिला दस्ता, जिसकी कमान है सुश्री मेघा नायर, सहायक कमांडेंट के हाथों में। The second contingent is of the central sector, gracefully commanded by Sri Gokul Kumar F, Assistant Commander. परेड का तीसरा दस्ता उत्तराखंड सेक्टर का कमान संभाल रहे हैं श्री विवेक कुमार गुप्ता, सहायक कमांडेंट। दर्शकों से अनुरोध, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करें इन सभी परेड के दस्तों का। और अब आप देख रहे हैं नीले रंग की वर्दी में परेड का चौथा दस्ता आरएफ सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री संकेत सुनील सकलकरे, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Amidst the parade, marching proud and flying high are the right colors of the Central Reserve Police Force and the Rapid Action Force. परेड का पांचवा दस्ता कोबरा सेक्टर का, कमान संभाली है श्री कार्तिकेयन एफ, सहायक कमांडेंट ने। आदर्श वाक्य, संग्राम में पराक्रमी जय। Sixth contingent is of the Rajasthan sector, commanded by Shri Vikram Kumar Meena, Assistant Commander. आज की परेड का सातवां दस्ता दक्षिणी सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री विवेक रंजन, सहायक कमांडेंट के हाथों में। And the last contingent of today's parade represents the Madhya Pradesh sector, gracefully commanded by Shri Himanshu Kumar Upadhyay, Assistant Commander. परंपराओं के अनुसार परेड के अंत में परेड एडजुटेंट श्री अमित कुमार, उप कमांडेंट। और अब आपके सामने आ रहे हैं बल के शूरवीर अधिकारी और जवान, जिन्होंने अपनी अद्भुत वीरता, शौर्य और पराक्रम से सीआरपीएफ के इतिहास में अप्रतिम वीर गाथाओं की रचना की है। पहली जिप्सी में सवार है कीर्ति चक्र से सम्मानित बल के बहादुर अधिकारी श्री चेतन कुमार चीता, कमांडेंट। दूसरी जिप्सी में अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भारत्तोलन की प्रख्यात खिलाड़ी पद्मश्री एन कुंजरानी देवी, कमांडेंट। तीसरी जिप्सी में शौर्य चक्र से सम्मानित श्री लखवीर, उप कमांडेंट एवं सत्येंद्र सिंह, सहायक कमांडेंट। चौथी जिप्सी में शौर्य चक्र विजेता श्री विक्की कुमार पांडे, उप कमांडेंट एवं सिपाही विजय ओराम। पांचवी जिप्सी में शौर्य चक्र पुरस्कृत श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट, सिपाही मलकित सिंह एवं सिपाही गामित मुकेश कुमार। इनके पीछे वाहन में सवार है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत अर्जुन पुरस्कार विजेता। छठी जिप्सी में श्रीमती साना माचा चंद, द्वितीय कमान अधिकारी, भारत्तोलन 2000 तथा सातवीं जिप्सी में सवार है निरीक्षक गीता रानी, भारत्तोलन 2006। इस शानदार मार्च पास्ट के उपरांत परेड के सभी दस्ते अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। मार्च करते हर जवान का संकल्प ज्योतिनग बना रहे और ध्वज तना रहे।
आप सभी से अनुरोध, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें इस शानदार परेड का। आगे बढ़ेगी। इस शानदार मार्चिंग के पश्चात मध्य सज की कार्यवाही के साथ स्वयं को सुव्यवस्थित करती परेड। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। मध्य समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे आती हुई परेड बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन देशों के सरताज। परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुनः सम्मान दिया गया और अब मैं श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का आग्रह करता हूं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह महोदय, मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जी को मैं सीआरपीएफ परिवार की ओर से सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह में पधार कर हमें अनुग्रहित किया है। यह सीआरपीएफ के प्रति आपके विशेष लगाव का परिचायक है। महोदय, आपकी बहुमुखी प्रतिभा एवं राष्ट्र प्रथम का भाव हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है। महोदय, आपसे प्राप्त स्पष्ट दिशा निर्देश, निरंतर पर्यवेक्षण व सूक्ष्म निगरानी परिचालनिक अंचलों में सीआरपीएफ द्वारा अर्जित सफलता का मुख्य कारक है। हम सभी इसके लिए आपके ऋणी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 27 जुलाई 1939 को तत्कालीन ब्रिटिश शासनकाल में गठित क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को आजादी के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए 28 दिसंबर 1949 को नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा तथा 19 मार्च 1950 को इस बल को सरदार वल्लभ भाई पटेल पदक ग्रहण कर रही हैं वीर बलिदानी सिपाही धर्मदेव कुमार 210 कोबरा की धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती मीना देवी। वीर बलिदानी सिपाही समैया माडवी 241 वाहिनी की धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती लक्ष्मी माधवी।
29 जनवरी 2022 पुलवामा। पदक ग्रहण करेंगे श्री दीपक दौंडियाल, कमांडेंट 182 वाहिनी। दिनांक 19 दिसंबर 2021 श्रीनगर। पदक ग्रहण करेंगे श्री विनय कुमार, सहायक कमांडेंट, सेकेंड बार टू पीएमजी वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप। निरीक्षक जीडी विकास यादव, फर्स्ट बार टू पीएमजी वैली क्यूएटी। सिपाही अलियास अहमद, वैली क्यूएटी। दस मार्च 2022 पुलवामा। पदक ग्रहण करेंगे श्री इम्तितोशी जमीर, सहायक कमांडेंट 173 वाहिनी। श्री तुलसीदास, सहायक कमांडेंट 159वीं वाहिनी। हवलदार पुरेंद्र सिंह। हवलदार पुरेंद्र सिंह। सिपाही गोविंद कुमार प्रजापति। सिपाही राणा पॉल। सिपाही चप्पा अपला स्वामी। ग्यारह मार्च 2022 पुलवामा। पदक ग्रहण करेंगे श्री प्रदीप सिंह राठी, सहायक कमांडेंट। श्री वांजारी सुजीत भास्कर राव, सहायक कमांडेंट।
हवलदार मोहम्मद हनीफ, सिपाही मुदस्सिर यूसुफ भट्ट, हवलदार सुखलाल सिंह, सिपाही मुलोथू रमेश, सिपाही कन्हैया लाल, सिपाही गोविंद कुमार प्रजापति, फर्स्ट बार टू डीएम, दिनांक 14 अप्रैल 2022 शोपियां कश्मीर। पदक ग्रहण करेंगे श्री अजय सिंह परमार, द्वितीय कमान अधिकारी। सिपाही ज्योति दास, सिपाही अपूर्व गोगोई, सोलह सितंबर 2020 श्रीनगर। पदक ग्रहण करेंगे श्री नरेंद्र यादव, द्वितीय कमान अधिकारी, 5th बार टू पीएमजी। श्री अमित कुमार, सहायक कमांडेंट, शौर्य चक्र, 4th बार टू पीएमजी। निरीक्षक जीडी आदित्य कुमार, सिपाही सरोज कुमार, 1st बार टू पीएमजी। सिपाही किशनपाल सिंह जादौन, 1st बार टू पीएमजी। दिनांक 31 मार्च 2020 गुमला, झारखंड। पदक ग्रहण करेंगे हवलदार जांगले सुनील नारायण।
दिनांक 6 अप्रैल 2022 पुलवामा कश्मीर पदक ग्रहण करेंगे श्री रविंद्र कुमार कमांडेंट। श्री राम कुमार जाट सहायक कमांडेंट। हवलदार इम्तियाज अहमद। यादव जी, मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक सीआरपीएफ श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, इस क्षेत्र के सभी चुने हुए प्रतिनिधिगण, आज जिन्होंने इतनी शानदार परेड की है, वो देश के अलग अलग हिस्से से आए हुए सीआरपीएफ के जवान और उपस्थित सभी सीआरपीएफ के परिवार को बहुत सम्मान सहित मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज यहां आने से पहले सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अलग अलग मोर्चे पर देश की सुरक्षा के लिए दिया है। मैं वो सभी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सैल्यूट कर यहां आया हूं और वो सभी 2264 शहीदों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आज देश 2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसमें आपके परिवारजनों के ये बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि देश की आजादी की शताब्दी का सुवर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा, सबसे पहले ये अमर शहीदों की वीरता की गाथा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमेशा सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। भाइयों और बहनों, मोदी जी की सरकार दूसरी बार बनने के बाद 2019 में हमने निर्णय किया कि सभी सीएपीएफ का स्थापना दिन देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। उसी के तहत आज ये वार्षिक परेड नीमच के अंदर मनाई जा रही है और आज यहां पर सीआरपीएफ के कई जवान, कई कार्मिक, उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकरणों से नवाजा गया है। मैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, सीआरपीएफ का योगदान देश की सुरक्षा से अलग हटकर कोई देख ही नहीं सकता। चाहे कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फैलाने वाले, नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के सामने जूझना हो,
चाहे पूर्वोत्तर में शांति प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैनात रहना हो, और सबसे बड़ी बात पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। और मित्रों, मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के हर जवान को एक कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत भूलना कि आपके नए स्वरूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। और सरदार पटेल के ही दिखाए हुए रास्ते पर इतनी लंबी मजल एक गौरवमयी यात्रा सीआरपीएफ ने समाप्त की है। और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सीआरपीएफ इस देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव सीआरपीएफ को प्राप्त है। भाई और बहनों, 76 साल के आजादी के इतिहास में कई ऐसे मौके हैं जहां देश की आन बान शान को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा कर रखा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 59 में चीनी सेना का मुकाबला केवल कुछ चुनिंदा सीआरपीएफ के जवानों ने किया और सबने शहादत हासिल की। इसलिए देश के सभी पुलिस बल प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाते हैं। और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में देश भर के शहीद पुलिसकर्मी और सभी सीएपीएफ के जवानों की स्मृति में चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर इसको हॉट स्प्रिंग की शहादत को गर्व के साथ एक अमर स्वरूप देने का काम किया है। 1965 में कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को शौर्य दिन पूरा देश मनाता है। मित्रों, 2001 में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पर हमला हुआ, इसको भी नाकाम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। 2005 में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, उसको भी निरस्त करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया और मंदिर को सुरक्षित रखा। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वो अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी दुर्दांत नक्सली भी जब उनको समाचार मिलते हैं कि कोबरा के जवान उनकी ओर गति से बढ़ रहे हैं,
तो उनकी रूह कांप जाती है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा शौर्य का परिचायक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बनी है। मैं आज इस मंच से 86वीं परेड के दिन पर कोबरा बटालियन के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। सीआरपीएफ के बगैर ये संभव नहीं है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के अंदर शांति बनाए रखनी हो या हर चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से पारित कराना हो, हर जगह सीआरपीएफ के जवानों ने मन देकर सच्चे मन से ड्यूटी निभाने का काम किया है। और मैं एक बात निश्चित कहना चाहता हूं, धारा 370 हटने के बाद जब कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, बहुत सारी आशंकाएं हो रही थी, मगर मुझे गर्व है मेरे सीआरपीएफ और बाकी सुरक्षा बलों के जवानों ने इतनी सुरक्षा सुनिश्चित की कि एक बूथ को भी लूटने नहीं दिया और एक भी जगह गोली भी नहीं चलानी पड़ी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीआरपीएफ ने विगत 5 साल में नक्सल क्षेत्र के अंदर 400 से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए हैं और इसी का कारण है कि 10 साल में नक्सल हिंसा में 70% से ज्यादा कमी आई है और वो अब समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश के उपनिषदों का संस्कार है। संयुक्त राष्ट्र मिशनों के साथ श्रीलंका, हैती, कोसाओ, लिब्रिया कई जगह पे सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशनों के साथ रहकर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है और इसी का कारण है कि अब तक कुल 2708 विभिन्न पदक बल ने प्राप्त किए हैं। वो सभी सीएपीएफ में सबसे ज्यादा पदक अगर किसी को मिले हैं तो मेरे सीआरपीएफ के जवानों, चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो, वैष्णो देवी की यात्रा हो, श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा हो या कुंभ का, महाकुंभ का अवसर हो, हर जगह सीआरपीएफ ने जवानों ने मुस्तैदी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद की है। स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, त्रिरंगा यात्रा, स्वच्छता ही सेवा, एक पेड़ मां के नाम, कई अभियानों को सीआरपीएफ ने एक बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर उतारकर ये भी सिद्ध किया है कि हाथ में बंदूक तो है मगर देश की, समाज की हर समस्या के सामने लड़ने के लिए सीएपीएफ हमेशा सजग है। और मित्रों, कोरोना काल में भी सीआरपीएफ ने ढेर सारी जगहों पे अपनी जान जोखिम में डालकर कई जवानों ने स्वयं को कोरोना ग्रस्त कर लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया, खाना भी पहुंचाया, टीकाकरण में मदद भी की और ढेर सारे अभियानों से समाज की सुरक्षा का काम किया है। मैं एक और बात के लिए भी सीआरपीएफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि विगत 5 साल में हमने तय किया था कि 5 साल में 5 करोड़ पौधों का रोपण सीएपीएफ के सारे बल मिलकर करेंगे। इसका पहला पौधा सीआरपीएफ के ग्रुप केंद्र गुरुग्राम में मैंने रखा था। 1 करोड़वा पौधा भी सीआरपीएफ के कैंपस नांदेड़ में ही रखा
4 करोड़वा पौधा भी मैंने यूपी के सीआरपीएफ के कैंप में ही रखा और आज 6 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर हमने पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छी जागरूकता दिखाने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने सीआरपीएफ के कल्याण के लिए, हमारे जवानों के कल्याण के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। देश भर के 7 दुर्गम क्षेत्रों में एयर कुरियर सर्विस को लागू किया गया और हाल ही में भारत सरकार ने वेतन और भत्ते में निरंतर सुधार हेतु 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है। हमने 42 लाख से अधिक आयुष्मान सीएपीएफ के कार्ड दिए हैं, जिसके तहत हजारों हॉस्पिटल आज सीएपीएफ कर्मी और उनके परिवारजनों के लिए उपलब्ध हैं। लगभग आवास योजना में हमने 9.5% सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाया है। सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च कर 6.5 लाख कर्मियों को खाली आवास देने के लिए हमने प्रयास किया और 1 लाख से अधिक आवास हमने आवंटित कर दिए हैं। अब बल में महिलाओं की भी भर्ती हो रही है। इनके लिए भी 124 महिला बैरक की अप्रूवल दी है, इसमें से 109 बन गई है और 450 बैरक बनाने का काम चालू करने का गृह मंत्रालय ने तय किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत सीएपीएफ कर्मचारियों के बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने की सुविधा, केंद्रीय अनुग्रह राशि को वैज्ञानिक बनाना, विकलांगता अनुग्रह राशि में 50% की वृद्धि करना और 119 मास्टर भंडार और 1794 सहायक भंडार के माध्यम से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारों को भी हमने ज्यादा लोकाभिमुख बनाया है। मित्रों, आज आपकी भव्य, मनमोहक, डिसिप्लिन और शानदार परेड को देखकर किसी का भी मन वाह सीआरपीएफ बोल जाए, इस तरह से आपने परेड की तैयारी की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं आज आशा व्यक्त कर जाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रण लिया है 31 मार्च 2026 को इस देश में एक भी जगह नक्सलवादी उत्पात करने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें सीएपीएफ को और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं और शहीदों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। नमस्कार। सीआरपीएफ की जन्मस्थली में आयोजित 86वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वार्षिक परेड के अवसर पर पधारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव एवं उनके सहयोगी मंत्रीगण, महानिदेशक सीआरपीएफ, अन्य वरीय पदाधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन, पुलिस एवं अन्य बलों के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, सम्मानित महिलाएं, प्यारे बच्चों और वीर साथियों, मैं समस्त बल के ओर से इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से बहुमूल्य समय निकालकर इस बल की 86वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी का मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन किया है। इसके लिए हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। आपकी उपस्थिति एवं प्रेरणादायक संबोधन से
समस्त बल में नवीन ऊर्जा का संचार किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रति आपका अटूट विश्वास हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव एवं अन्य उपस्थित मंत्रीगण का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा बढ़ाई है।